Hello students, good morning. Welcome to HS online classes. Students, today it's a English language turn. So that's why today we are going to read English language in our today's class. And students, today we shall read chapter 23 punctuation of our English language book Cornerstone. And included this chapter 23 punctuation, we shall read about punctuation and types of punctuation, full stop, question mark and exclamation mark. And after that, we shall read some important question of this chapter 23 punctuation in our today's class. Okay. So all students, please press partial attention class and listen to my words clearly. Let's see punctuation. Students, let's see introduction of punctuation. Students, the introduction of punctuation is while you write a sentence, you need to use the correct punctuation to make complete sense. Okay. While you write a sentence, students, जब आप एक sentence write down करते हैं, एक वाक्य लिखते हैं, you need to use the correct punctuation to make complete sense. तो आपको उस sentence के sense को complete करने के लिए, उस वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए आपको एक करेक्ट पंचुएशन की नीड होती है. ओके, लेट्स सी टाइप्स ऑफ पंचुएशन. स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पंचुएशन टू एंड अ सेंटेंस. ओके, एक सेंटेंस के एंड में हम 3 प्रकार के पंचुएशन का यूज करते हैं. ओके, लेट्स सी फर्स्ट नंबर टाइप ऑफ पंचुएशन फुल स्टॉप. एंड स्टूडेंट, सेकंड नंबर टाइप ऑफ पंचुएशन इज क्वेश्चन मार्क. थर्ड नंबर लास्ट टाइप ऑफ पंचुएशन इज एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके स्टूडेंट्स, now we are going to read about first number type of punctuation, full stop. So let's see students, it's a full stop. okay, ये full stop है and this full stop it's saying something to us और ये हमसे कुछ कह रहा है. so listen these words clearly. okay, इसके वर्ड्स को listen its words clearly, इसके वर्ड्स को बहुत ही अच्छे से सुनते हैं. okay, let's see. I am a full stop. It's mean कि मैं एक full stop हूँ. full stop means पूर्ण विराम. मैं एक पूर्ण विराम हूँ. I look just like a dot. ओके, मैं सिर्फ एक डॉट की तरह दिखता हूँ. एक डॉट की तरह दिख रहा है ना. इफ़ यू सी मी यू मस्ट स्टॉप. ओके, जब आप मुझे देखते हैं तो आपको स्टॉप हो जाना चाहिए. सेंटेंसेज दैट गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग एंड वेट टू मी. ओके, ऐसे वाक्य जो आपको किसी के बारे में कुछ बताते हैं वो उनका अंत मुझसे होता है. ओके, तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो आपको किसी के बारे में बताते हैं, किसी के बारे में जानकारी देते हैं, उनके एंड में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. क्लियर? लेट्स एग्जाम्पल. माई फेवरेट फूड इज पिज़्ज़ा. ओके, मेरा पसंदीदा खाना पिज़्ज़ा है. ओके, तो फ्रेंड्स, दिस फर्स्ट नंबर सेंटेंस इट इज़ गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मी. मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, दैट माई फेवरेट फूड इज़ पिज़्ज़ा, कि मेरा जो फेवरेट फूड है वो पिज़्ज़ा है. ओके, सो फ्रेंड्स, दैट्स वाई here we are using full stop in the end of this sentence. इसलिए सेंटेंस के हमने full stop यूज किया सेंटेंस के एंड में. ओके स्टूडेंट, लेट्स सी सेकंड नंबर एग्जांपल. योर सेकंड नंबर एग्जांपल इज राज इज माय बेस्ट फ्रेंड. इट्स मीन राज मेरा सबसे अच्छा दोस्त है. ओके स्टूडेंट्स, दिस सेकंड नंबर सेंटेंस इट इज आल्सो गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट मी. ये भी मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, मेरे बारे में जानकारी दे रहा है कि राज इज माय बेस्ट फ्रेंड, कि राज मेरा सबसे अच्छा दोस्त है. ओके स्टूडेंट, दैट्स व्हाई हियर वी आर यूजिंग फुल स्टॉप in the end of this second number sentence. Clear? So students, we have read about full stop and I hope you must have understood this first number type of punctuation, full stop. Okay, now we are going to read about our second number type of punctuation, question mark. Let's see question mark. Students, it's a symbol of question mark. Okay, let's see. Students, this second number type of punctuation, question mark, it's saying something to us. Okay, so listen its words carefully. इसके words को बहुत ही carefully सुनते हैं. Students, this question mark it's saying that I am a question mark. ये question mark कहते हैं कि I am a question mark. मैं question mark हूँ. question mark means प्रश्नवाचक चिन्ह. ओके, I look like a hook with a dot. ओके, तो students, जो full stop का जो सैम्बल था, ओके, तो वो ओनली एक डॉट की तरह है, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क है वो एक हुक के साथ में एक डॉट की तरह है. ओके, लुक लाली हुक है ना, और इसके जो बिलो है वो एक डॉट है ना. तो एक क्वेश्चन मार्क बोलता है, जो सेकंड टाइप ऑफ पंचुएशन है वो बोल रहा है कि आई एम अ क्वेश्चन मार्क, मैं क्वेश्चन मार्क हूँ. आई लुक लाइक अ हुक विद अ डॉट, और मैं एक हुक, मैं एक डॉट के साथ हुक की तरह दिखता हूँ. ओके, एक हुक है होगा और इसके साथ एक डॉट है. ओके, व्हेन यू सी मी, जब आप मुझे देखते हैं, यू शुड आस्क, यू शुड आस्क. ओके, जब आप मुझे देखते हैं तो आपको पूछना चाहिए, आपको क्वेश्चन करना चाहिए. सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चन इन विथ मी. ओके, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जो क्वेश्चन आस्क करते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, उनका मुझसे होता है. क्लियर? तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जो क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं. ओके, जैसे हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं. हाँ, और विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है. ओके, जो क्वेश्चन करते हैं ऐसे सेंटेंसेस, उनका किससे होता है, क्वेश्चन मार्क से. लेट्स सी एग्जाम्पल. व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है. ओके स्टूडेंट्स, दिस सेंटेंस इज आस्किंग क्वेश्चन. ओके, दिस सेंटेंस इज आस्किंग योर नेम, आपका नेम पूछ रहा है. ओके, आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है. तो स्टूडेंट्स, हियर वी आर यूजिंग क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ दिस सेंटेंस बिकॉज दिस सेंटेंस इज आस्किंग क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है.
एंड योर सेकंड नंबर एग्जांपल इज डू यू लाइक चॉकलेट, क्या आप चॉकलेट पसंद करते हैं? सो स्टूडेंट्स दिस सेकंड नंबर एग्जांपल इट्स आल्सो आस्किंग यू समथिंग, या भी आपसे कुछ पूछ रहा है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हुआ ना, डू यू लाइक चॉकलेट, क्या आप चॉकलेट पसंद करते हैं, है ना? तो स्टूडेंट हियर वी आर यूजिंग question mark in the end of this sentence because this sentence is also asking question, okay, क्योंकि ये question कर रहा है. Clear? So we have also read about question mark and I hope you must have understood the second number type of punctuation, question mark. Okay, now we are going to read our third and last type of punctuation, exclamation mark. Students, it's your exclamation mark, okay, and this exclamation mark, which is the third and last type of punctuation, it's saying something, so listen its word carefully. Let's see. I am an exclamation mark. Okay, it's saying that I am an exclamation mark. ये बोल रहा है कि मैं एक exclamation mark हूँ. Exclamation mark, it's been विस्मयादि बोधक चिन्ह. Okay, I look like a stick above a dot. Okay, मैं एक stick की तरह दिखता हूँ. Okay, stick it's mean एक छड़ी की तरह दिखता हूँ, एक dot होता है इसके नीचे पे. Okay, when you see me, you should exclaim as in oh, hooray, alas, wow, oh no, etc. ओके, जब आप मुझे देखते हैं ना तो बहुत ही सरप्राइज्ड आप शो करते, बहुत ही वंडरफुल शो करते. ओके, यू शुड एक्सक्लेम, तो आप एक्सक्लेम शो करते जैसे ओ, हुरे, अलास, वाओ, ओ नो. ओके, तो इस टाइम जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाले वर्ड्स होते हैं ना, वो जब हमारे सडनली माउथ से निकलते हैं तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और उन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस के साथ हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं. ओके, सेंटेंसेस दैट सो एक्साइटमेंट और शॉक एंड विद मी, तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जो एक्साइटमेंट को शो करते, उत्तेजना को प्रदर्शित करते, ओके, और या शॉक होते, इट्स मीन कि आश्चर्यजनक जो सेंटेंसेस हमारे होते हैं, जो हमें हैरान करने वाले होते हैं, या एक्साइटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनका एंड किससे होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क से. ओके, लेट्स एग्जांपल, वाओ दिस इज फ्लावर इज लवली. ओके, सपोज दैट जब भी आपने अगर कहीं गए, अगर आप विजिट करने, आपने बहुत ही फ्लावर देखे, उसमें से बहुत ही वो जो फ्लावर थे बहुत ही ब्यूटीफुल से थे, आपने क्या कहा? वाओ दिस फ्लावर इज लवली, कि वाओ ये कितना प्यारा फ्लावर है ना. तो स्टूडेंट्स आप बहुत ही सरप्राइज होंगे, बहुत ही सडनली आपके माउथ से निकलेगा वाओ, है ना. तो स्टूडेंट्स दिस इट्स एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दैट्स व्हाई हियर वी आर यूजिंग एक्सक्लेमेटरी मार्क इन द एंड ऑफ दिस सेंटेंस. क्लियर? एंड स्टूडेंट्स ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया सेंटेंस के एंड में. एंड स्टूडेंट्स योर सेकंड एग्जांपल इज ओ नो आई हैव लॉस्ट माय पेन. इट्स मीन कि अरे नहीं मैंने अपना पेन खो दिया. ओके स्टूडेंट्स, दिस सेंटेंस इट्स सो सैडनेस को शो कर रहा है, दुख को प्रदर्शित कर रहा है, और सडनली हम बोल सकते ओह नो आई हैव लॉस्ट माय पेन, है ना. तो स्टूडेंट्स हियर वी आर यूजिंग एक्सक्लेमेशन मार्क इन द एंड ऑफ दिस सेंटेंस बिकॉज दिस सेंटेंस इट्स एन exclamatory sentences. Okay, and students we have read about exclamation mark and I hope you must have understood also this third number type of exclamation mark. Okay, so students we have read about punctuation and type of punctuation, full stop, question mark and exclamation mark, and I hope you must have understood introduction of punctuation and type of punctuation. You have no problem in any type of punctuation and the introduction of punctuation. Students, now we are going to read some important question of this topic punctuation. Let's see. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, इट्स मीन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. स्टूडेंट जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज व्हाट डज अ पीरियड और फुल स्टॉप रिप्रेजेंट. ओके, एक जो पीरियड होता है या फुल स्टॉप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ओके, इट्स मीन कि एक पूर्ण विराम क्या प्रदर्शित करता है. स्टूडेंट्स योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ पीरियड और फुल स्टॉप रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट पुश व्हाइल रीडिंग अ सेंटेंस. ओके, जब भी हम एक सेंटेंस को रीड करते हैं, एक वाक्य को पढ़ते हैं, तो सबसे बड़ा जो सबसे ग्रेटेस्ट पुश होता है, सबसे बड़ा जो विराम जो होता है उसे प्रदर्शित करता है फुल स्टॉप. ओके, कि अब हमें रुकना है. ओके स्टूडेंट्स, और सेकंड नंबर क्वेश्चन इज व्हाट डज अ क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट. एक क्वेश्चन मार्क क्या रिप्रेजेंट करता है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है. स्टूडेंट्स और सेकंड नंबर आंसर इज अ क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट्स अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन मार्क एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह एक प्रश्न को प्रदर्शित करता है. क्लियर? स्टूडेंट्स और थर्ड नंबर क्वेश्चन इज व्हाट डज अ एक्सक्लेमेशन मार्क रिप्रेजेंट. कि एक एक्सक्लेमेशन मार्क एक विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है. ओके स्टूडेंट्स, और द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज an exclamation mark represents strong feelings such as joy, anger, surprise, distress, etc. Okay, तो स्टूडेंट्स जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है एन एक्सक्लेमेशन होगा, सॉरी फॉर दैट. ओके, एंड एन एक्सक्लेमेशन मार्क रिप्रेजेंट, जो एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है. ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करता है, बहुत ही मजबूत अनुभवों को प्रदर्शित करता है, जैसे कि जॉय हो गया, आनंद हो गया, एंगर हो गया, गुस्सा हो गया, सरप्राइज हो गया, आश्चर्यजनक चीज़ें जो भी होती है, डिस्ट्रेस हो गया, दुख हो गया, तो इन सारी चीज़ों को एक्सक्लेमेशन मार्क प्रदर्शित करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हियर आर
एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, एन एक्सक्लेमेशन मार्क होगा बॉट इन प्लेस. ओके, दोनों जगह पे क्वेश्चन में भी एन एक्सक्लेमेशन मार्क होगा एंड आंसर में भी. ओके, so student, let's see 4 number question. Student, so 4 number question is what is the symbol of period or full stop. Okay, period या full stop का symbol क्या होता है, उसका प्रतीक क्या होता है. So students, your 4 number answer is the symbol of a period or full stop is full stop. Okay, तो इसका जो symbol क्या होता है वो एक dot होता है. Clear? Students, let's see question number 5. Students, so first number question is what is the symbol of question mark. question mark का symbol क्या होता है, it's mean प्रश्नवाचक चिन्ह का क्या प्रतीक होता है. So students, the answer of this question is the symbol of question mark is question mark. It's mean कि हुक विथ डॉट. ओके, एक जो हुक होता है डॉट के साथ उसे हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, और इसका सिंबल क्या होता है क्वेश्चन मार्क का. ओके, हुक विथ डॉट. ओके, जिसे हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं. स्टूडेंट, योर 6 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क. इट्स मीन कि एक्सक्लेमेशन मार्क का क्या सिंबल है. वी कैन से आल्सो दैट विस्मयादि बोधक चिन्ह का क्या प्रतीक है. स्टूडेंट, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क इज अ स्टिक बिलो अ डॉट. ओके, एक स्टिक के बिलो, एक स्टिक के नीचे जो डॉट होता है उस सिंबल को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. क्लियर? So student, we have read all these question answer and I hope you must have understood all these question answer. You have no problem in any question answer of this topic punctuation mark. Okay, so students, today's your class work is that आपका क्लास वर्क है कि आपको इस वर्कशीट की फोटोकॉपी करानी है और ये पंचुएशन का इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ पंचुएशन विद क्वेश्चन आंसर आपको अपनी रफ नोटबुक पे राइट डाउन करनी विद योर बेस्ट हैंड राइटिंग. इट्स योर टुडेज क्लास वर्क एंड स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज दैट लर्न दीज वर्कशीट्स. इट्स योर टुडेज होमवर्क. आपका होमवर्क है कि आपको ये वर्कशीट लर्न करनी. ओके, सो ऑल स्टूडेंट, फर्स्टली कंप्लीट योर क्लास वर्क. फोटोकॉपी कराइए वर्कशीट की एंड राइट डाउन इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ पंचुएशन विथ इट्स क्वेश्चन आंसर in your rough notebook. Students, listen clearly. I am talking about rough notebook, not fair notebook. Okay, fair notebook पे नहीं note down करना है, आपको rough notebook पे write down करना है इसको. Okay, और इस वर्कशीट की फोटोकॉपी करानी है. Clear? So all students complete your class work and send me your work here. Thank you.